براہ راست شو فضل ربی میں زندگی ٹیلی ویژن پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ہمارا شو اس کے فضل سے آج ہم 100واں شو کر رہے ہیں۔ 100 شو ہمارے آج مکمل ہو رہے ہیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ احباب جو کسی نہ کسی طرح سے اس شو کا حصہ تھے، حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ تحسین کے مستحق ہیں اور میری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ان سب کو بہت برکت دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام وہ لوگ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مشورہ جات سے نوازتے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارا خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو شفقت اور محبت کا خدا ہے، جو امن اور سلامتی اور بحالی اور زندگی اور قبولیت کا خدا ہے، وہ ان سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پرتشدد رویے، ان کے اسباب اور حل۔ نازک موضوع ہے، اس پر بہت سے پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک پہلو سیکھنے کا وہ ہے خدا کا کلام۔ جب آخر زمانہ کی بات کی جاتی ہے تو انسانی کردار اور رویوں کی بات بھی کی جاتی ہے، تو مختصراً اس بات کو پوری دنیا میں اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں اسباب اور ان کا حل، تو دیکھنا ہوگا کہ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آخر زمانے کے کردار کی جب بات کی جاتی ہے، انسانی صفات و عادات کی بات کی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول تیموتھیوس کے خط میں تیسرے باب کی پہلی جو آیات ہیں، ان میں وہ ذکر کرتا ہے کہ آخر زمانے کا کردار کیا ہوگا، اور چند جو کردار کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور لکھا ہے کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے فرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، اور اگلی باتیں پرتشدد رویوں کے تعلق سے لکھا ہے، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ یہ کردار ہے آخر زمانے کا۔ اس میں کوئی مذہب، کوئی مکتبہ فکر کیوں نہیں؟ اگر یہ باتیں ہیں تو پھر لکھا ہے خدا کے بندے کی پہچان اسی خط میں، اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں 24ویں آیت، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی خداوند کا بندہ ہے، مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ آگے لکھا ہے سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق، اور آگے لکھا ہے بردبار ہو۔ یہ ہے پہچان خدا کے بندے کی، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ خدا کا بندہ ہے۔ جب ہم اس وقت دنیا کو دیکھتے ہیں تو 2 دن پہلے افغانستان میں جو ہزارہ برادری کے ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں، 80 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگر ہم فرانس اور جرمنی میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کی حرکات اور اعمال نہیں ہو سکتے، لیکن کرنے والے ہم انسان ہی ہیں، اور انسان اس
नहज तक कैसे पहुंच जाते हैं, असबाब क्या हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन आइए एक क्लिप भी देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लिप देखते हैं। जिंदगी गुजारी है, अब शहर जो आएगी, वो शहर हमारी है। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदा भी अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, सभी खुश हैं। मरी में 19 साला लड़की को जलाए जाने का इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है और इस कमेटी को हुक्म दिया गया है कि 48 घंटों में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करे। वाक़े में मुलव्विस 3 मुलजिमान को इत्तलात हैं कि गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक मुलजिम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक मुलजिम मफरूर है। सफ़ाक दरिंदों ने रिश्ता न देने पर 19 साला लड़की को जिंदा जला दिया था। एक और बेटी इंसानियत सोज रस्मों का शिकार हो गई है। एबटाबाद के बाद मरी में वाकया पेश आया। 19 साला मारिया का रिश्ता शादीशुदा शख्स को न देने पर आग लगा दी गई। इन्होंने उत्थे मैंने लिया के पहला फैर मारिया, फैर मार के लेकिन मैंने फैर नहीं वज्जा है, वज्जा मेरे सार दे उत्ते वज्जा है, एक हाथ ते वज्जा है, लेकिन फिर बाद च मैं कि नाले दा इन्होंने मर गई है। मैं लेकिन मरी नहीं सा है, मैंने होश ही थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं मरी नहीं सा है। इन्होंने बोरी च बंद करके मैंने तो मुंह बन के इन्होंने नहर दे विच सुट्टिया सी, बोरी च पा के नहर दे विच, लेकिन इन्होंने मर गई, लेकिन मैं मरी नहीं सा है। ठीक है, उसके अंकल के गारंटी पे भेज दी लड़की। ठीक है, उन्होंने पहले दिन मैंने पूछा लड़की को फ़ोन आया, कुछ बोला तो नहीं है? उसने बोला कुछ नहीं मुझे बोला। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे 4 दिन बाद लड़की का फ़ोन आया। उसने बोला मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि धमकियाँ दे रहे, तुम्हें जाने ही देना। मैंने कहा बड़ों में बात हुई है ना, 8 दिन का टाइम हुआ ना, तो मैं 8 दिन बाद आगे हम खुद ही ले जाएंगे तुम्हें, तुम टेंशन ना लो। ऐसे हम आपस में हम शोर डालेंगे, ऐसे अच्छा नहीं समझेंगे बड़े। तो ये आज का टाइम था, आज सुबह का टाइम था, कल उन्होंने लड़की को मार दिया। नाज़रीन, ये तमाम जो खबरें हैं पाकिस्तानी मीडिया पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो हिस्सा था उसमें आपने देखा अमजद साबरी कहते हैं कि ये 2 नगमात जो उसने गाए ये उसकी मौत का सबब बने। उसके बाद आपने देखा कि कुछ ख़वातीन को जिंदा जला दिया गया। क्या कोई इल्हामी किताब इन बातों की इजाज़त देती है? क्या किसी अदालत से किसी ने कोई हुक्मनामा लिया ताकि वो ये सब काम कर सके? इसके साथ जो पूरी दुनिया में इस वक्त कत्ल गारत जारी है, क्या कोई इल्हामी किताब उसकी इजाज़त देती है? अगर उस किताब ने इजाज़त दे रखी है तो फिर इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है कि तालीमात पर गौर किया जाए और खुदा की बातों को उस नज़र से देखा जाए जिस तरह से वो बयान की गई हैं। चंद आयात आपके सामने रखूँगा और फिर अपने मेहमानों से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा जो लोग कहते हैं इस्लाम में और मसीहत में कि हम दीनदार हैं। तो सबसे अच्छा दीन किसका दीन कहा गया है? अगर कोई कुरान पढ़ता है तो देखिए सबसे अच्छा दीन किसका कहा गया है। यह सूरह अल-निसा है और 124वीं आयत है। और उस शख्स से किसका दीन अच्छा हो सकता है? अब जो लोग कहते हैं ना जी हम दीनदार हैं, हम इस दीन के पैरोकार हैं, तो वो ये पढ़ लें और इसके साथ अल-निसा की जो वर्स 82 है
وہ بھی یاد رکھیں. کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جواب بھی اسی میں ہے، جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا. خدا نے اپنا دوست بنایا. کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے اہل اسلام، اہل مسیحیت اور اہل یہود سے، اور پوری دنیا کے وہ لوگ جو خدا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ آیات کو لے کر اپنے مفادات کے لیے تو استعمال کرنے والے ہیں، لیکن کیا خدا جس نے اس زمین پر انسان کو پیدا کیا، اس کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا، کس نے اجازت دے رکھی ہے کہ گلے کاٹے جائیں، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے؟ قانون اور الہامی کتب کی اپنی اپنی تشریحات گھڑ لی جائیں اور پھر ان پر بضد ہو کر عمل بھی کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے. کہاں سے لے لیا آپ نے یہ؟ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور اس حکم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو 10 احکام میں سے ایک حکم یہ تھا کہ تو خون نہ کرنا. اچھا دین اس کا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا ہے، مانا ہے، وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ عمل میں نظر آتا ہے، نہ صرف زبان سے اور ذہن سے بلکہ عمل اس کی زندگی سے نمایاں ہے، اسے ممتاز کرتا ہے دیگر انسانوں سے. جس نے حکم خدا کو مانا، آج حکم خدا تو کہیں نظر نہیں آتا، حکم انسانی اور فرقہ بندی کے جو احکام ہیں وہ تو ہر طرف نظر آتے ہیں، لیکن خدا کا حکم تو خون نہ کرنا، اگر یہ آج بھی خدا کا حکم ہے تو کس نے پھر بدلا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے. ابراہیم کا دین کہاں ملے گا؟ کہاں آپ کو تعلیم ملے گی؟ توریت پڑھیے، انبیاء کے صحائف پڑھیے. اگر آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے، اور لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، تو اس میں خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی، خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہونے کا بھید بھی ہے. اور اگر آپ نئے عہد نامہ کو پڑھیں تو ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ہم نے تو اپنی اپنی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اپنے فرقے سے باہر، اپنی ڈینومینیشن سے باہر ہم دیکھنا اور جھانکنا نہیں چاہتے. دیگر انسان ہمارے لیے شاید ایک خام مال کی صورت اختیار کر گئے ہیں، ان کی اہمیت شاید ہماری نظروں میں کچھ باقی نہیں رہی، وہ انسان نہیں سمجھے جا رہے. خدا نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اور خدا نے جسے دوست بنایا اس کو قوموں کا باپ کہا گیا ہے، تمام اقوام کا باپ. آج یہ رویے سوالیہ نشان. اب لکھا ہے وہ نیکوکار بھی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر نیکوکار جو ہے وہ نیک کام کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے. اور جو نیک کام کرے گا، النساء 123، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان بھی ہوگا. اگر نیک کام نہیں کرے گا مرد یا عورت تو صاف لکھا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. پھر تو ایسے لوگ بشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو نیک کام نہیں کرے گا وہ مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا. آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ اور جب میری بات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ تو ایمان پر بھی اختلاف ہے. ایمان بسیط ہے ایک تعریف اسلام میں، اور ایک ہے ایمان مرکب، اور اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے.
मसीही फिरकों में भी आप देखें मुख्तलिफ ईमानों की तारीफ आपको मिलती है, लेकिन यहां पर यह सिफ्त बयान फरमाई गई है कि वो नेक काम करेंगे, बुराई उनकी जात से निकल नहीं सकती। अगर बुराई निकलती है तो वो साहिबे ईमान नहीं है, वो कुछ और तो हो सकते हैं। नतीजा बहिशत में दाखिल नहीं होंगे तो बहिशत के अलावा कौन सी जगह जहां दाखिल होंगे ये भी याद रखिए। और फिर मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब है खुदा की मर्जी के ताबे शख्स। और अल बकरा 62, जो लोग मुसलमान हैं वाज़े लिखा है और ये आज भी मौजूद है। ना तो ये आयत मुतशाबे है ना मंसूख है, आज भी मौजूद है। मुसलमान का मतलब पढ़ लीजिए जो अपनी मर्जी खुदा के ताबे कर दे। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, जो लोग मुसलमान हैं, यहूदी या ईसाई या सतारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो। और यहां पर ये मैं बात वाज़े कर दूं, ये मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी का तर्जमा है और सफ़ा नंबर 12 पर पढ़ लीजिए। कोई भी शख्स अगर कोई ये जुबान खोलेगा पढ़े बगैर कि ये गलत तर्जमा है तो वो पहले पढ़े, तहकीक करे, फिर बात करें। जो लोग मुसलमान हैं और यहूदी और ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और आगे शर्त है नेक अमल करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला खुदा के हां मिलेगा और क़यामत के दिन उनको ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। जो नेक अमल करेगा। और अगर कोई नहीं करेगा तो यहां पर लिखा है, और जो शख्स मुसलमान को, पहले हमने तारीफ देखी जो खुदा की मर्जी के ताबे हैं, पिछली जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, और जो शख्स मुसलमान को कस्तन मार डालेगा, इरादतन सोच और प्लानिंग करके, तो उसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। अब यहां पर मैं वाज़े करना चाहता हूं, कुरान में पढ़िए वो आयात जिनमें लिखा हुआ है कि हमेशा दोज़ख में वो जलता रहेगा। लोगों ने अपनी अपनी तालीमात बनाई हुई हैं, तो पढ़िए जितनी आयात कुरान में हैं दोज़ख के ताल्लुक से, जहां लिखा है वो हमेशा जलता रहेगा, तो यहां पर वाज़े है। और खुदा उस पर गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो देख लीजिए, जो किसी को नाहक मारेगा ये है सजा। तो मैं फिर कह रहा हूं, कुरान की सब आयात जिनमें लिखा है हमेशा दोज़ख में रहेंगे, पढ़िए, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आगे हम देखते हैं खुदा तआला को क्या पसंद है। मगर तुम जाकर इसके माने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। वो लोग जो कहते हैं, जो आपके साथ रास्तबाजी, जो आपकी अपनी रास्तबाजी है उसमें शरीक नहीं, आपके ग्रोह में नहीं है, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। वो जिंदा रहने के हकदार नहीं है। ना जाने कहां से ये बातें आपने ढूंढ ली हैं। तुम जाकर इसके माने दरियाफ्त करो, पढ़ो, होश के नाखून लो, तालीम की तरफ वापस आओ, खुदा के कलाम की तरफ वापस आओ। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। इसके बाद अगली आयत हम देखते हैं, कहां फिर आप दरियाफ्त करेंगे, कहां दरियाफ्त करेंगे? अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो, तो जो लोग तुमसे पहले उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो रहम का मतलब, कैसे वो जिंदगी का हिस्सा बने, इस पर भी बात करते हैं। उनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना बनो। जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हल क्या है, पुरतशद्दद रवैयों का हल क्या है, तो फिर लौटिए इस किताब की तरफ। मुतारफ करवाना चाहता हूं पहले मेहमान को, बिशप सोहनलाल साहब, और फिर दूसरे मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। बिशप साहब जी, बिशप सोहनलाल साहब हमारे साथ हैं। चलें, जब तक वो कनेक्ट होते हैं, एक कॉल है, मैं कॉल ले लेता हूं। बिशप साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले मैं कॉलर से बात कर लूं, फिर आपसे बात करते हैं। जी, आप ब्राडा शो फजले रवि में हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए प्लीज।
हेलो जी, बात कीजिए। हाँ जी, मैं कर रही हूँ, लेकिन वो बिजी है ना, बोल रहे हैं, तब उनको नहीं जा रही मेरी। जी, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने टीवी की आवाज बंद कीजिए। मैं डॉक्टर दानियाल बात कर रहा हूँ। मेरा तो टेलीफोन से मैं सुनती हूँ। ठीक है, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, प्लीज। हाँ जी, सैमी साहब जी, आपको मेरा बहुत बहुत सलाम मैं कह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका टॉपिक, ये जो कह रहे हो, लेकिन जो मारते हैं ना, इनको नहीं समझ आएगी। ये इनको जितना इनके साथ सिर खपा लो ना, तो ये मारते रहेंगे, ये खून बहाते रहेंगे, लड़कियों का और लड़कियों का। तो मुझे बहुत खुशी होती है, आप सामने आते हैं, बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कुरान के भी हवाले देते हैं, बाइबल के भी देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इंसानों को तो लग जाती है, सुने जाता है, लेकिन गधों को नहीं लगती, गधों को नहीं सुनाई देता भी हमें क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगी आप? हाँ जी, बस यही मैं देखती हूँ, मैं हर वक्त आपका देखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा है, आप बोलते हैं। जी, बहुत मेहरबानी। ये खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये शो हमें दे रखा है। इन्होंने बात की है, ज़बूर में लिखा है, ना हो कोड़ियां खच्चरां वांगर तू ते कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने, घोड़ों और खच्चरों की मानद ना बनो, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं है। उनको बागें डाली जाती हैं और फिर वो बागों को जो जिसके हाथ में होती हैं वो जिधर चाहता है उनको मोड़ता है। तो क्यों आप मौत के सुदागरों के हाथों में खेल रहे हैं? जिंदगी की तरफ क्यों लौट कर नहीं आते? ये उनके दिल की पुकार थी जो वो हमारे साथ शेयर कर रही थी। जनाब मोहतरम बिशप साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल। एक बार फिर से मैं आपका और जिंदगी टीवी का शुक्र अदा करता हूं कि फिर से दावत दी गई कि आपके इस प्रोग्राम लाइव शो फजले रब्बी में हम फिर से शिरकत करें और बात करें उन विषयों के बारे में जो हम सब इंसानी लोगों के लिए जरूरी है। बिशप साहब, तशद्दुद क्या है, इसकी क्या तारीफ है, और ये इंसानी जिंदगियों का हिस्सा कैसे बन जाता है, इस पर बात कीजिए। तशद्दुद है क्या, ये इंसानी जिंदगियों का हिस्सा कैसे बन जाता है? सबसे पहले बाइबल का खुदा तख्त पर बैठा हुआ है, बाइबल का खुदा तख्त पर बैठा हुआ है और उसकी आंखें सब इंसानों के ऊपर लगी हुई हैं। सो वो खुदा जिसका पाक कलाम हमें सिखाता है मोहब्बत, अमन और भाईचारा, आइए उस खुदा के कलाम की बात करें। और जैसे डॉक्टर साहब आपने सवाल किया, तशद्दुद क्या है? तशद्दुद है सख्ती, ज्यादती और जबर। ये इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए या उसकी जान ले ले और उसके जीवन को खत्म कर दे। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने बहुत जामे तारीफ बयान फरमाई है, लेकिन ये इंसानी शख्सियत का, इंसानी ज़ात का हिस्सा क्यों बनता जा रहा है? इस वक्त हर तरफ ये एक वबा फैल चुकी है, एक लहर है तशद्दुद की, ये इंसानी जिंदगियों का हिस्सा क्यों बन जाता है? बात ऐसी है डॉक्टर साहब, बात ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है, पूरी दुनिया में इस बात को समझने की जरूरत है। इंसान जो खुदा की शक्ल और उसकी सूरत में बनाया गया है, इंसान खुदा की शक्ल और सूरत में तो बनाया गया है, लेकिन इंसान के पास खुदा के दिल और दिमाग जैसा ताकतवर दिल दिमाग नहीं है। इसीलिए आज इंसान खुदा के उस ताकतवर दिमाग का हिस्सा बनने की बजाय आज तशद्दुद उनकी जिंदगियों का हिस्सा बन रही है। जी बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि खुदा अगर जिंदगी में है तो उसकी सोचें और उसका दिल खुदा जैसी शफकत मोहब्बत से भरा होगा। तो इंसान कैसे ये दिल और ये सोच उनकी जिंदगी का हिस्सा बने, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा है, जैसे रोमियो के खत में लिखा है,
रोमियो का खत उसका 12वां अध्याय 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे दिल के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा दिल और दिमाग की जो सोच है, जो विचार है, जो इच्छाएं हैं, वो बदलती जाएं, ताकि उनको हम ऐसी हिंसात्मक, ऐसी तशद्दुद की बातों से हटाकर अमन, मोहब्बत और भाईचारे की बातों के ऊपर लगाएं, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जी बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने ये जो आयत हमारे सामने रखी है रोमियो के खत के 12वें बाब में से, ये मैं अपने तमाम मोहब्बत करने वालों के सामने पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पस ए भाइयों, गौर से सुनिए पूरी दुनिया के इंसानों, बिशप साहब कह रहे हैं हाल क्या है। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुम्हें इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। अब खुदा की रहमतें याद दिलाकर, और फिर आगे लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जहान के हम शक्ल ना बनो, तशद्दुद की राह नहीं बल्कि खुदा से अकल पाओ। अब ये जो नई अकल है या नया दिल होना है, ये कैसे होता है, ये बताइए फिर, कलाम क्या कहता है इसके बारे में, कैसे ये होगा? ये जब तक खुदा के, हम आज तक खुदा के हुक्मों को हम देखते आए हैं, खुदा की तमाम बातों को हमने देखा है, हुक्मों को देखा है। जैसे हम देखते हैं पाक मुकद्दस बाइबल हमें बताती 10 हुक्मों के बारे में, उसमें एक ये भी हुक्म आता है, तू खून ना कर, जिसका एक हिस्सा तशद्दुद है। तशद्दुद जो इंसानी जिंदगियों को जिस्मानी तरीके से और रूहानी तरीके से और दिमागी तरीके से क्या करती है, असर डाल के उनको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसके लिए खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के जैसे ना बनो, बल्कि खुदा की मोहब्बत को समझो और खुदा के उस अमन में और भाईचारे में बने रहो कि खुदा की बादशाहत के तुम वारिस हो सको। ये खुदा का कलाम हमें बताता है। बहुत शुक्रिया, आप कह रहे हैं खुदा की बादशाहत में आ जाना, खुदा की बादशाहत के असूलों में आ जाना, उसके हुक्मों में आ जाना आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। हमारे साथ हमारे एक दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी मुतारफ़ करवाना चाहता हूं, जनाब प्रोफेसर असगर अली साहब। सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? खुदा के फजल करम से बहुत खैरियत से हैं, और आज का मौजू जो आपने चुना है और आपने मुझे मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दुनिया इस नफ़रत के आग में जल रही है, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि इसके ऊपर हम किताब मुक़द्दस का मुताला करें कि आखिर किताब मुक़द्दस की नज़रिया क्या है। लोग खुदा के नाम से, मजहब के नाम से ये जो तसद्दुद फैला रहे हैं, जो मतलब आपने जो एक वाक़या बयान किया है, नाम लेना भी ऐसा लगता है कि जानवर से भी बदतर हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस पर रोशनी डाला जाए। जी बहुत शुक्रिया। आप चूँकि बरसगीर में बैठे हुए हैं, किसी शायर ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर मजहब के बारे में ये कहा जाता है ये अमन और सलामती का मजहब है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा। अगर किसी शख्स को फैलने वाली बीमारी लगी हुई है, अगर किसी शख्स को ऐसी बीमारी लगी है जो फैलती है दूसरों को छूने से, दूसरों के पास जाने से, तो वो शख्स चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, किसी खित्ते का हो, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो बीमारी अगर उस जगह पर फैलेगी तो लोग तहकीक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी इस इलाके में तो नहीं थी, इस जगह पर तो नहीं थी, ये कैसे यहां पर लोगों में फैल गई। तो फिर जब तहकीक होगी पता चलता है कि ये फलां शख्स जो इस बीमारी में मुब्तला था, ये यहां तक पहुंचा है और फिर ये बीमारी दूसरों तक भी पहुंची है। इसी तरह से ये रवैये हैं। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें ये बताइए कि मुख्तलिफ इल्हामी कुतुब जो हैं,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब ईमान और अमन की बात करते हैं। तो आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है, इल्हामी कुतुब क्या कहती हैं इसके बारे में? जी, और आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। एक्चुअली ये अल्लामा इकबाल ने कहा था ये बात कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ख़ास तौर से उनका जो ज़ोर था वो था सूरह अल-बकरा 2 का 256 आयत में, जहाँ पे लिखा है कि मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर प्रोफेसर साहब बड़ी माजरत, ये जो लिखा है मजहब में ज़बरदस्ती नहीं है, इससे क्या क्या मुराद ली जा सकती है, ये थोड़ा सा खोल दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके समझने के लिए हमें 7 बातों को जानना ज़रूरी है कि ये बात जब पैगंबर इस्लाम ने कहा था तो मक्के में थे, और मक्के में एक्चुअली वो एक तरीके से उतने ताकतवर नहीं थे कि वो ज़ोर आजमा सकें, और इस वक्त उन्होंने कहा। लेकिन अगर तारीख अल-तबरी पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 उर्दू में जो छपी है, पेज नंबर 1 से लेके 5 में, तो जब उन्होंने अपने मजहब की बशारत करनी शुरू की, तबलीग करना शुरू की, तो लोगों ने उसको अपनाया नहीं। और लोगों ने क्यों नहीं अपनाया, इमादुद्दीन साहब अपने किताब में 3 वजूहात बयान करते हैं। नंबर 1, मैं चाहूंगा कि आप इसकी मुताला करें और आप इसके बारे में जानें। अब जब आप पढ़ेंगे इब्न हिसाम साहब, ये उर्दू में छपी है, अगर आप देख सकते हैं तो, और इसका पढ़िए आप पेज नंबर 300 से लेके 318 से लेकर आगे। तो दूसरा, उन्होंने बार बार ये दरख्वास्त की कि आप हमें कोई मिरेकल, कोई मौजज़ात दिखा दें जिससे पता चले कि आपका पैगाम खुदा के तरफ से है। और वो बार बार कहते हैं, खासतौर से एक आयत में कोट करूंगा, अगर आप चाहिए तो मैं 18 आयत बता सकता हूँ, बनी इसराइल 17 का 59 में, कि खुदा कहता है कि वो मौजज़ात नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले उसने किया और लोगों ने यकीन नहीं किया। तीसरी बात जो लोगों ने उनमें देखा वो ये कि इनकी जो ये बातें बताते हैं ये सब पहले ज़माने के हैं। जैसे हजरत आदम की कहानी आप फरमाते थे, हजरत नूह की, हजरत इब्राहिम की, हजरत सुलेमान की, वो कहते हैं कि ये सब बातें हमको मालूम है, और ये 8 बार दोहराया गया है कुरान के अंदर, और इसीलिए वो लोग यकीन नहीं किए। लेकिन आप तारीख अल-तबरी पढ़िए, और मैं इस वाक़या के बयान मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा अपने सामीन से, क़ारीन से, कि वो लोग इसको पढ़ें, है ना, वो लोग जो सुन रहे हैं उसको जाके इसकी मुताला करें, कि वहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने 3 चीज़ आपके सामने रखा। नंबर 1, या तो मौजज़ात कर दीजिए। नंबर 2, उन्होंने उनसे 3 सवाल किया जिसका जवाब दे दीजिए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं था। और नंबर 3, उन्होंने कहा कि हम आपके इन बातों से मुतमईन नहीं, क्योंकि ये पुरानी कहानियां हैं, और इसलिए आपको वहां से मदीना जाना पड़ गया था। और जब आप मदीने गए तो मदीने में ये तसद्दुद की वाक़यात पेश आना शुरू हुआ। और अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं एक एक करके बयान करूं इसका, ठीक है, कि वहां पे जाने के बाद आप कहते हैं कि आपको ये हुक्म मिलना शुरू हुआ कि आप मतलब इसके लिए जंग करें, ठीक है। और मैं बता दूं, कुरान 43 का 88 और 89, कुरान सूरह तौबा का आयत नंबर 5, आयत नंबर 29, सूरह अल-माइदा 5 का 27 से लेके 32, इन जगहों पे कुछ ऐसे लिखा है कि मतलब मिक्स बात है। मिक्स मतलब दोनों किस्म की, कि आप जंग ना करें, आप मिल के रहें। लेकिन आपको मालूम है कि जब आप मतलब पैगंबर इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती, जब उनके पास ताकत आ गया, तब वो कहते हैं कुरान 47 का 35 में कि देखो, जब तुम जोरावर हो जाओ, जब तुम्हारा हाथ ऊपर है, यानी तुम अख्तियार में हो, तो तुम कभी अमन कबूल मत करना। आप समझिए जनाब, देखिए, जब आप कमजोर थे तो आपने बेशक अमन की बातें कही, लेकिन जब आप ताकतवर हो गए तो आप कहते हैं कि आप अमन कबूल मत करना। और इसके ऊपर प्रोफेसर साहब थोड़े बड़ी माजरत आपको रोक रहा हूं। अब यहाँ पर दीन में जबर नहीं, और यहाँ पर ये जो अभी आप इस आयत का बयान फरमा रहे हैं, तो सूरह अल-निसा और उसकी जो 82 वर्स है वो भी जरा यहाँ पर बता दीजिए, चूंकि जो तालिब इल्म हैं या जो रिसर्चर हैं या जो लोग इस पहलू से पहली दफ़ा सुन रहे हैं, शायद उनके लिए कुछ ये बातें सुनना नागवार उनको गुजर रहा हो। तो आप कुरान से बताइए कि कुरान खुली दावत देता है हर शख्स को जो उसका मुतालिया करता है। तो अल-निसा की 82 जरा पढ़ दीजिए सबके लिए,
ताकि ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। 82 जरा पढ़ के सुना दीजिए अगर आपके पास कुरान जी। और उसके अलावा 5 आयत और भी है वो सब ये जो 5 आयत है ना मोहतरम, मैं चाहूंगा आप ये 5 आयत पढ़ दीजिए, रिकॉर्डेड हो जाएं, ताकि कुरान कह रहा है, कोई इंसान या कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये जब कुरान के अंदर इतनी जुर्रत है, कुरान के अंदर इतनी दलेरी है कि वो ये कहता है कि आओ तहकीक करो, और अगर कुछ तजाद पाओ तो ये खुला ऐलान है, पैगाम है। आज जो उलमा हजरात हैं पूरी दुनिया में, जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, वो जब इन आयात को पढ़ते हैं तो फिर क्यों दूसरों को बताते नहीं कि ये किताब दलेरी से कह रही है आओ तहकीक करो, सवाल उठाओ। तो फिर आज सवाल उठाने वालों के खिलाफ फतवे क्यों दिए जाते हैं? क्या आप कुरान से मोतबर हो गए हैं? ये आयात देखिए, कुरान की जुर्रत देखिए कि वो फरमा रहा है कि आओ तहकीक करो, ढूंढो, सवाल उठाओ, और अगर तुम्हें कुछ इख्तलाफ मिले तो देखिए ये आयात क्या कह रही हैं। मोहतरम जरा ये आयात आप प्लीज पढ़ दीजिए सबके लिए। हम शुरू करते हैं। एक जो लफ्ज आपने तसद्दुद का इस्तेमाल किया है, उस तसद्दुद लफ्ज के ऊपर देखिए कुरान का क्या कहना है। तो सूरह तौबा 9 का 73 आयत, यहाँ पे लिखा है कि ए नबी आप जंग कीजिए और जो मुनाफिकीन हैं यानी जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ सख्ती से पेश आइए। अल-गुलूज, तो यहाँ पे लफ्ज का इस्तेमाल किया है गया कि आप गलीज तरीके से पेश आइए, सख्ती के साथ पेश आइए। फिर सूरह अत-तहरीम 66 का 9 में है, सेम आयत है कि ए नबी आप खुदा के राह में जंग कीजिए और जो मुनाफिकीन है, जो गैर मुस्लिम है, उनके साथ सख्ती के साथ पेश आइए। अल-गुलूज अरबिक लफ्ज है अल-गुलूज, जिसका मतलब है सख्ती, तसद्दुद, मतलब आप उनके साथ बहुत गरम मिजाजी से पेश आइए। फिर सूरह तौबा 9 का 123, और ये मोमिनों के लिए है, ये 2 तो नबी के लिए था, और नबी क्योंकि हमारे लिए मिसाल है, जो सूरह तहरीम आप देखेंगे 33 का 21 आयत में कि नबी तमाम मोमिनों के लिए मिसाल हैं, लेकिन यहाँ पर मोमिनों के लिए है। सूरह तौबा आयत नंबर 123 में लिखा है कि ए मोमिनों तुम अल्लाह के राह में जंग करो और होने दो कि ये गैर मुस्लिम तुम्हारे अंदर हार्सनेस, गलीज पाएं, मतलब तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। और इसीलिए बहुत सारे आईएसआईस के जो वीडियो हैं जो यूट्यूब पर हैं, वो इन्होंने इतने खतरनाक तरीके से लोगों को कत्ल किया इस आयात को अमल में लाते हुए। और फिर सूरह फतह 48 का 29 में यहाँ पर लिखा है कि और जो नबी यानी पैगंबर इस्लाम, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो नबी के साथ रहते हैं वो आपस में मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन गैर मोमिनों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। तो देखिए ये 4 आयत है जहां पर ये लफ्ज अरबी का गुलूस इस्तेमाल किया गया है कि सख्ती के साथ पेश आओ। अब इसके अलावा जब हम आगे पढ़ते हैं तो ऐसे 6 और वजूहात हैं। मैं नहीं कहूंगा, मैं रेफरेंस पढ़ दूंगा आपके सामने कि इसका वजूहात क्या है। ये आज जो लोग बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं, इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मैं आप तमाम अहबाब के सामने, ये मेरे पास है अल कुरान अदारा इस्लामियात लाहौर कराची से छिपा हुआ है, अल-निसा की 82 आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? आगे सवालिया निशान है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। अब ये वाज़े मैं आप तमाम अहबाब को दिखा देना चाहता हूं। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? ये सवालिया निशान है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? वाज़े लिखा हुआ है, ये खुली दावत है कुरान की कि आओ
देखो, इन आयात पर गौर करो, इनको परखो और फिर रहनुमाई पाओ। सूरह यूनुस 94। मेरे साथ एक इस वक्त हमारे इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं और वो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं, और मैं उन्हें भी मुतारफ़ करवाना चाहता हूं। उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा कि ये रवैये परवान क्यों चढ़ रहे हैं, क्या हुआ है। तो मैं हमारे साथ होंगे पुकार न्यूज़ के रुए रवां हैं और इंटरनेशनल सहाफ़ी, गहरी नज़र रखते हैं दुनिया के हालात पर, जनाब रुमेल गुलजार साहब। रुमेल भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप पुरतशद्दद रवैये जो हैं ये परवान चढ़ रहे हैं, आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, तो आप बताइए कि ये रुझान क्यों इस ज़ोर से, इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि इंसान इंसानियत को भूलकर दरिंदगी की राह पर आ गया है। जनाब मोहतरम गुलजार साहब। जी, रुमेल साहब हैं ऑनलाइन हमारे साथ। हेलो जी जी, रुमेल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको लाइव शो फजल रबी में ज़िंदगी टीवी पर। आपसे दरख्वास्त है, बताइए ये रवैये क्यों परवान चढ़ रहे हैं। आप मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं तो आप की राय भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑन एयर लेने के लिए। मैं आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम, जहाँ पे भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इसका क्या है। अब देखें कि हर दुनिया में हर रिलीजन जो है कि वो सबसे पहले ये क्लेम करता है कि वी आर द पीस, वी आर द पीस, और हम पीस लविंग है। ये सारा सबसे पहले तो हमें ये बात करनी किस पीस की बात हो रही है और हम ये किस चीज को विन करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये रिसेंटली जो पेरिस में हुआ है जिसकल, तो वो भी एक सिस्टम ऐसा है कि ये यानी कि बैड से तो वर्स जा रहा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोगों को ये जो एक दूसरे के हम लगे हुए हैं कि पीछे भागदौड़ में, कि हमें रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। हम पीस को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब हम बात डिलीवरी पे आती है तो मेरे ख्याल से किसी भी बंदे को ये मालूम नहीं है कि हम किस चीज़ की पीस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें ढूंढना है। अब मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं। जहाँ तक मेरी नज़र दौड़ती है कि हर बंदा ये पीस की बात करता है, लेकिन पीस कहाँ है, कैसे है, कौन डिलीवर कर रहा है। और अगर ये जो लोग क्लेम करते हैं कि इस्लामिक स्टेट है जैसे, और ये सब लोग क्लेम करते हैं कि अगर आप किसी मुस्लिम बंदे से पूछें कि ये क्यों हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी ये हम लोग नहीं है, ये मुस्लिम लोग नहीं है, आईसिस मुस्लिम वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे ये जो भी रवैया जो इंसिडेंट्स हो रही अराउंड द वर्ल्ड, वो अल्लाह के नाम पे करते हैं। तो अल्लाह ही इज रेफरेंस टू गो टू द मुस्लिम कम्युनिटी। सो मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर हम किस पीस की या किस रिलीजन की बात करते हैं। और इस चीज़ पे मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे आज तक जितने भी आर्टिकल्स मीडिया की तरफ से या ऑनलाइन या प्रिंट टेलीविजन, इस बात को कोई भी बंदा क्लियर नहीं कर सका कि अगर हम एक रिलीजन की बात करते हैं तो वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये लॉस्ट है कि इस्लामिक स्टेट या आईसिस क्या साबित करना चाहती है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि हम किस पीस को ढूंढ रहे हैं, किस पीस को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुमेल साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए। हर इंसान को अगर वो ये बात करता है कि पीस, तो उसकी अमली सूरत क्या मेरे ज़ात में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में और फिर पूरी दुनिया में उसकी अमली सूरत है या नहीं है, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रुमेल गुलजार साहब हमारे साथ शरीक हुए। अब मैं मोहतरम प्रोफेसर साहब आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप ये बताइए फिर कि इंसान मोहब्बत के रवैयों में वापस आए, अमन की अमली सूरत क्या कलाम खुदा में कोई उसकी राह, कोई तरीका, कोई हल बताया गया है या नहीं। और इस तरफ आने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि लोग एतराज़ करते हैं बहुत से कि पुराने अहदनामा में भी कत्ल गारत है और फिर अनाजील में भी एक आयत आई है कि मसीह ने फरमाया मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो इस पर क्या आप कहेंगे फिर?
जी, हालाँकि अभी तक भी हम लोगों ने उस मुश्किलात को, उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील नहीं किया है, क्योंकि अभी जो तशद्दुद रवैया है, इसके 7 वजूहात हैं। हमने जस्ट एक के ऊपर देखा है, 6 और को देखना था, तब हमें पता चलता और तब हम सॉल्यूशन के ऊपर आप चलते तो ऐसा मेरे कीजिए, ख्याल जो से 6 जी, वजूहात हैं सिर्फ वो बता जी, दीजिए, वक्त हमारे पास 15 मिनट है। वो 6 जी, जो रह गई हैं वो आप जी। मेंशन कर दीजिए, तफसील फिर किसी वक्त करेंगे। जो हल है वो ज़रूरी है, तो आपकी बड़ी जी। मेहरबानी, आप जो दीगर 6 रह गई हैं वो बताइए। जी, मैं जस्ट रेफरेंस पढ़ दूँगा और मैं चाहूँगा कि अपने सामईन इसकी मुताला करें, जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, वो लोग सबसे पहले पैगम्बरे इस्लाम की फितरत, उनके ज़ात व सिफ़ात के बारे में पढ़ें, और ये है रेफरेंस। इब्न आइसक पेज नंबर 36, पेज नंबर 72, सही अल बुखारी वॉल्यूम 9 हदीस नंबर 111, सही अल बुखारी वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 3, सही अल बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 658, 660, 661, तबारी वॉल्यूम 6 अंग्रेजी पेज नंबर 76, वॉल्यूम 9 पेज नंबर 167, किताब अल तबकात वॉल्यूम 1 पेज नंबर 244 से 48, सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 490, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 89, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 400, इब्न हिसाम उर्दू वॉल्यूम 1 पेज नंबर 240। मैं चाहूंगा कि आप इसकी मुताला करें और आप इसके बारे में जानें। रीजन 2, दूसरा नंबर हम रीजन जब देखते हैं तो देखिए, आप पढ़िए इस्तिस्ना का किताब यानी ड्यूटोनॉमी 18 का 9 से लेकर 14 में कि तुम किसी बदरूह, किसी मुर्दे आत्मा जिन के पास जाकर के मेरे बारे में दरियाफ्त मत करना। लेकिन किताब मुकद्दस यानी कुरान के अंदर ऐसा लिखा है कि कुरान का खुदा जिन्नों के जरिए अपने ताकत का मुजाहरा करता है। और यहाँ पे अब सवाल है कि क्या वो वही यहोवा खुदा है? तो जिस खुदा के बारे में कुरान में आप पढ़ते हैं, वो अपनी ताकत का मुजाहरा जिन्नों के साथ करता है, और वो है कुरान 46 का 29 से 31, सूरह जिन 72 का 111, 34 का 12 से लेकर 14 में, और 27 का 36 से लेकर 40 में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फितरत जो है उस खुदा का, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं मुश्किलात है। वजूहात नंबर 3, कुरान के अंदर 36 बार लिखा है, मैं जिहाद लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, कि तुम लोगों को कत्ल करो, लेकिन मैं 7 पढ़ रहा हूं। कुरान सूरह अल बकरा 2 का 116 में लिखा है कि ए मोमिनो, तुम्हारे लिए जंग करना ये जरूरी है। कुरान निसा सूरह निसा 4 का 89 में, ए मोमिनो, जहां कहीं काफिरों को पाओ इनको कत्ल करो। कुरान सूरह तौबा 9 का 36, ए मोमिनो, जहां पर तुम कहीं ये बुत परस्तों को पाओ इनकी कत्ल करो। कुरान सूरह अल बकरा 2 का 244 में, ए मोमिनो, तुम अल्लाह के राह में जंग करो, इनकी कत्ल करो। कुरान सूरह तौबा 9 का 12 में, जहां कहीं ये गैर मुसलमानों के जो लीडर्स हैं उन पे अटैक करो, उनको कत्ल करो। कुरान 9 का 123 में कि ओ मोमिनो, तुम जो अल्लाह पे यकीन रखते हो, तुम उनको कत्ल करो सख्ती से, होने दो कि ये तुम्हारे अंदर सख्ती को पाएं। अब इसके अलावा आपको मालूम है जनाब कि इंसान के लिए जो अल्लाह का जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको कत्ल करने में इनको रहम नहीं आए। तो नंबर 1, कुरान 7 का 174 में लिखा है कि ये जानवर हैं। कुरान 7 का 176 में लिखा है कि ये यहूदी कुत्ते हैं। कुरान 62 का 5 में लिखा है कि ये गधे हैं। कुरान 74 के 50 में लिखा है कि ये गधे हैं। कुरान 5 के 50 में लिखा है कि ये मंकीस और सुअर हैं। कुरान 9 के 28 में लिखा है कि ये नापाक है, बदतर हैं। और कुरान 98 का 6 में लिखा है कि ये गैर मुस्लिम सबसे वर्स्ट क्रिएचर हैं। तो अगर आप जगह गधे हैं, मंकी हैं, डंकी हैं, सबसे मतलब बेकार अगर आप मखलूक हैं, तो आपको कत्ल करने में मुश्किलात क्या है? और तब आप इसको ऊपर गौर कीजिए। कुरान 8 का 12 और 160 में लिखा है कि अल्लाह तुम्हें वही देगा, इंस्पायर करेगा कि तसद्दुद के साथ इनकी कत्ल करो। अब पढ़िए कुरान 8 का 12 और 60। अब देखिए बाइबल में लिखा है पैदाइश 9 का 2 से लेकर 6 में कि तुम इंसान की कत्ल मत करना। क्यों? क्योंकि वो खुदा के सबिया में बनाया गया। लेकिन यहां पर क्या है? ये इंसान गैर मुसलमान, ये सबसे गलीज मखलूक है, इसके लिए तुम कत्ल करो। नंबर 5 कह के मैं जस्ट छोड़ दूंगा।
सूरह तौबा 9 का 5, और आप पढ़िए तफसीर इब्न कसीर वॉल्यूम 4 पेज नंबर 375 377, और सूरह तौबा 9 का 29 जहां पर यहूदी और क्रिश्चियंस के लिए लिखा गया है कि इनसे जंग करो। अब बाकी के मैं वजूहात को छोड़ देता हूं, लेकिन एक आयत में बताऊंगा जरूर। कुरान 47 के 35 में लिखा है कि जब तुम्हारा हाथ ऊपर हो, जब तुम अख्तियार में हो, तो अमन पसंद मत करना। और ये वजूहात है जनाब कि ये लोग कह रहे हैं क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह तौबा 9 का 29 से 33 में, 48 के सूरह फतह आयत नंबर 88 और 61 के 9 में कि इस्लाम जब तक तमाम दुनिया के ऊपर कब्जा नहीं करे तुम लड़ते ही रहो, और इसीलिए ये साहिबान ऐसे काम कर रहे हैं। तो जनाब अब फिर मेरा एक बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से ये आयात बयान फरमाई हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुसलमान उलमा हैं उनमें से अगर कोई भी साहब बात करना चाहें और बताना चाहें कि ये जो आयात हैं क्यों लोग अगर अमन और दीन में जबर नहीं, तो ये आयात तो आज भी मौजूद हैं। ये जो दीन में जबर नहीं, अल बकरा की कौन सी आयत है, जरा बता दीजिए मोहतरम। 2 का 256 256 आयत है सूरह अल बकरा, दूसरी आयत है दीन में जबर नहीं। अभी मैंने आपके सामने अल निसा की 82 पढ़ी है। गौर करो, अगर इख्तलाफ हो तो फिर कुरान कहता है कि तुम क्या मानो। अब प्रोफेसर साहब ने कुरान की आयात रखी हैं और हवाला जात दिए हैं। अब आप पर इन्हसार है जो तालिब इल्म हैं, जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि फिर मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूँ आपको, अल कुरान सूरह अल निसा 82 मैंने आपके सामने पढ़ी। क्या तुम क्यों कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? अगर ये खुदा के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। अब ये आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, गौर कीजिए और फिर इसकी रोशनी में मुतालिया कीजिए, ना कि किसी को इल्ज़ाम दें कि कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। तस्वीर तो वाज़ेह है पूरी दुनिया में इस वक्त। देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट, फिर यूरोप में क्यों ऐसा हो रहा है। मोहतरम प्रोफेसर साहब, हल इसका क्या है? इसके लिए कलाम जो कहता है वो आयत में आप तमाम दुनिया के सामने रखना चाहता हूं कि इसका हल क्या है। दूसरा क्रंथियों का खत है और उसका 5वां बाब है। जी ये स्लाइड नहीं, ये आखिर में मैं दिखाऊंगा। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो आप तमाम अहबाब देख लीजिए। दूसरा क्रंथियों का खत है, 5वां बाब है और उसकी 17 आयत हल बयान करती है। और मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब इस पर बात कीजिए। यहां पर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। और मसीह खुदामंद अमन लेकर इस दुनिया में आए। प्रोफेसर साहब मुख्तसर बता दीजिए, हम आपके पास 4 मिनट हैं। एक तो पुराने अहदनामा में कत्ल व गारत का हुक्म है, वो कहते हैं, और मसीह की ये वाली आयत जो अनाजील में है, सुलह नहीं तलवार चलाने आया हूँ, इसको वाजे कीजिए। और फिर ये जो हल बयान किया गया है, कोई मसीह में नया होकर अमन पसंद बन सकता है, यही हल है। बात कीजिए, 4 मिनट आपके पास है। जी, मैं बता दूं कि इसके लिए 5 वजूहात है जिसको हमें जानना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम बाइबल को कोट करें और कहें कि उसमें भी तसद्दुद है। नंबर 1 कि आपको मालूम है, जब आप खरूज पुराने नियम में पढ़ेंगे जहाँ पे 7 कौमों के बारे में है कि यहोशुआ और मूसा, हजरत मूसा कहते हैं कि जाना इनको कत्ल करना। नंबर 1 वो एक दर्ज है और ये हुक्म नहीं है कि तमाम दुनिया पर लागू होगा। नंबर 2, खुदा इसके वजूहात बताता है जब आप एहबार पढ़ेंगे, यानी लेविटिकस 18 का 1 से लेकर 24 में, कि उसका वजह क्या है। ये लोग इतने गुनहगार थे
जो कि एक बेटा अपने माँ और बाप के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता था, जानवरों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था, और ऐसे ऐसे नाम है जो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। और खुदा कहता है कि क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है, और खुदा आपको मालूम है कि एक वहां पर अपने खादिम को रखा है। जब हम पढ़ेंगे जेनेसिस 14 बाब, तो वहां पर लिखा है कि मलकी सिद्दीक थे, तो खुदा ने अपने काहिन को रखा, 400 साल इनको मौका दिया, लेकिन तो भी ये लोग तौबा नहीं किए। और इसीलिए खुदा इब्राहिम से कहता है कि देखिए मुल्क में दूंगा, लेकिन अभी नहीं, चौथे सदी में। तो आप पढ़िए पैदाइश उसका 15 का 1 से लेकर 18 में। मोहतरम, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तो इसमें जल्दी से ये बात मुकम्मल कर दीजिए प्लीज। जी, तो खुदा कहता है, अब हम आते हैं नए नियम में कि देखिए पुराने नियम में जंग शुरू हुआ, लेकिन नए नियम में मसीह इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाते हैं। वो कहते हैं मत्ती का इंजील 5 का 43 से लेकर 48 में कि मैं कहता हूँ दुश्मनों से मोहब्बत करो। लेकिन जो ये आयत लोग कोट करते हैं कि मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ, उन्हें मालूम है कि जब मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो एक सहाबी ने कहा यहाँ पर एक तलवार है, और मसीह ने कहा कि बस ये इसलिए लिखा है कि ताकि ये प्रोफेसी मुझ में पूरा हो। तो आप सोचिए, अगर मसीह एक तलवार कहते हैं और वहां पे पूरा रोमन साम्राज्य है, तो क्या उससे मुकाबला हो सकता है क्या? नहीं। मसीह ने ये कहा था कि कोई 10,000 के साथ आए तो 20,000 से मुकाबला करना। तो ये एक पेशन गोई थी, और इसीलिए मसीह ने उसको कोट किया कि उनमें ये पूरा हुआ। फिर हजरत मसीह कहते हैं हवारियों से कि ये तुम्हारे अंदर होगा। तो जैसे मैं हूं, हजरत मसीह में आया हूं, और वो कहते हैं कि जब मुझ पे ईमान रखोगे तो तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे। अब तलवार बाइबल में कहा गया कि खुदा का कलाम 2 धारी तलवार है, और जब हम खुदाबंद मसीह पे यकीन रखते हैं तो वो तलवारें हमारे खिलाफ चलती हैं। हजरत मसीह सलीब पर कहे कि ये बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये साहिबान जो ऐसी बातें कहते हैं, ये मसीह के जिंदगी को देखें, पहली से लेके और आज तक मसीहत को देखें कि खुदाबंद मसीह ने वो जो रास्ता हमारे लिए एग्जाम्पल पेश किया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर, हम वैसे करते हैं। तो वो आयत जब कोट करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़िए ना, और याद रखिए हजरत मसीह कहते हैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। मसीह कहते हैं अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, बिशप सोहनलाल साहब आपका शुक्रिया, रुमेल साहब आपका शुक्रिया। आयात आपके सामने रखना चाहता हूं आखिर में। पस जो कोई, स्लाइड दिखा दीजिए, पस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। अगर खुदा ने ये बात आप पर खोल दी है कि खुदा भला खुदा है, वो चाहता है सबके साथ भलाई, और जो नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है, और लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखते हैं मत्ती की अंजील 5वें बाब में। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो वाज़े हो गया, जो रहमदिल नहीं हैं फिर उन पर भी रहम सवालिया निशान है। लिखा है मुआफ करो, तुम्हें भी मुआफ किया जाएगा। जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये है कि अपने खुदावंद खुदा से मुहब्बत रख, और अपने हम जिन्स इंसान से अपनी मानिद मुहब्बत रख। पुरतशद्दद रवैयों का हल ये है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और वही मोहब्बत दूसरों तक पहुंचा सकता है जिसके अंदर मोहब्बत होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।